Hello everyone, this is Munami Das. So, good morning. So, हमारे लास्ट क्लास में हमने मेंटल यूनिट 6 मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन वो कंप्लीट किया था. सो टुडे आई डिस्कस अबाउट अनदर topic or chapter, that is unit for HS second year. This is unit 5, a section, memory and forgetting. So first of all, it is necessary to know the topics of this chapter, memory and forgetting, and later we discuss about the is a question and answer, and also in this according to the question I'll explain the answer. So let's start. So unit 5, memory and forgetting. So memory and forgetting both are very essential mental function of every individual. So it is very important for the student as academic achievement. So academic achievement are always related to the memory and forgetting. Whose memory is capacity is good, they can achieve the good result, and who have the poor memory power, they are quite less to remember the things, and it is a cause of forgetfulness. So पहले मेमोरी सुनने के बाद हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, वो होता है कंप्यूटर मेमोरी और फ़ोन मेमोरी, बट हेयर इट्स अ डिफरेंट. सो यहाँ पे हमारे ह्यूमन मेमोरी, और वी कैन से दैट द memory of an individual we are talking about. So let's discuss in this chapter, unit 5a, memory and forgetting. In this chapter you will learn about the topics is meaning and definition of memory first. Second one is characteristics of memory. What are the characteristics in this memory and process of memory? There are processes are there memory, how we learn the things, how we store in the mind, and how we revive or recall the things, and how we recognize the things. That is the process of memory. So next one is types of memory. In these types of memory there is so many types are there: long term memory, short term memory, sensory memory, and long term memory and short term memories. Their types are there, we'll discuss about those. Marks of good memory. So what are the marks of good memory? एक इंसान की जो मेमोरी है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि उसका मेमोरी गुड है, अच्छा है, उसके बारे में समझेंगे. और नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी. हम लोग मेमोरी जो है, हमारे मेमोरी, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. हो सकता है कि अभी थोड़ा कम है, और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जैसे अच्छे से करके हम लोग मेमोरी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरगेटिंग. मेमोरी एंड फॉरगेटिंग तो यूनिट का नाम था, तो फॉरगेटिंग से भी सब टॉपिक्स है. सो क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरगेटिंग. फॉरगेटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन है. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरगेटिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा. कॉज ऑफ फॉरगेटिंग. सो हम लोग जो भूल जाते हैं, कई बार होता है कि स्टूडेंट्स हम लोग भी बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, घर पे सब याद रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, जाने के बाद क्वेश्चन देखा और सब फुर मीन्स भूल गए. या फिर हो सकता है कि एक क्वेश्चन लिखने लगे, आधा लिखा और बाकी सब भूल गए. सो इन दिस प्रोसेस क्या क्या कॉज हो सकते हैं वो सब समझेंगे इसमें, इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टॉपिक और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते वो सब पहले समझते हैं.
What do you mean by memory? So what is the meaning of memory? That question will ask for marks. 1 marks के लिए भी पूछ सकते हैं, 2 marks और 3 marks कभी कभी पूछ लेते हैं. डिफाइन मेमोरी 2 marks और 3 marks के लिए भी आ सकता है ये. व्हाट इज़ मेमोरी? गिव ए फ्यू डेफिनेशन. ये 3 marks के लिए आ सकता है या फिर 2 marks के लिए भी कभी कभी दे देता है. सो लेट्स स्टार्ट. इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? So first of all, we all know we have a specific function of mind that we acquire knowledge of outer world and retain them in a conscious part of mind. Means we acquire knowledge from outer world, or we retain them or store them in our mind, or we can say that we store it in our unconscious mind, and when it is necessary we recall it through our conscious part of mind. That is called the memory. So memory is meaning of memory. So memory is the function of mind which enables one to recollect and use the acquired knowledge and experiences whenever necessary. So मेमोरी क्या है? हमारे माइंड का एक फंक्शन है जो क्या करता है, हम लोगों ने जो नॉलेज एक्वायर किया कोई काम करके या फिर कुछ बुक्स पढ़ के, कहीं पे घूमने जाके जो नॉलेज या एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने एक्वायर किया उसको रिकलेक्ट मीन्स रिकॉल, फिर से उस चीज़ को याद करना, उसे मेमोरी बोला जाता है. सो you can you all know that in your first year also you studied about the there are 3 types of mind. One is unconscious, subconscious and is conscious mind. So all the things what we acquire from the outer world that we stored in the unconscious mind, or we can say that automatically is stored in our unconscious mind, and when it is necessary that can we recall through the conscious mind. That is called memory. So in this the faculty psychologists believe that memory is a specific power of mind. So there in the past, or we can say there's the previous who are जो पहले के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, मेमोरी इज़ ए स्पेसिफिक पावर. मेमोरी को क्या बोला था, एक पावर बोला था माइंड का, जिसमें हम लोग जो कहीं भी कुछ भी चीज़ों को हम लोग देखते समझते, उसके बाद उसको एक्वायर करते नॉलेज को, उसके बाद एक्सपीरियंस को, उसको हम लोग जो स्टोर करके रखते उसको एक पावर बोला था. बट मॉडर्न यहाँ पे कुछ दिया नहीं. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट होगा. GIST psychologist. Modern psychologists believe that and said memory is a mental function or process of mind. So modern psychologist ने क्या बोला था, मेमोरी को एक मेंटल प्रोसेस बोला था और मेंटल फंक्शन बोला था, जो प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते, किसी नॉलेज को या फिर एक्सपीरियंस को एक्वायर करते, उसको स्टोर करके रखते, और अकॉर्डिंग टू द टाइम वी रिकॉल इट एंड वी रिकॉग्नाइज इट. That is called memory. So in this also we in this process the images of various experiences acquired through with our sense organs. So we hear it, we see the things, we taste, and also the whenever it necessary, or
skin it help. Those sense organ helps to store the acquired knowledge and experiences in our mind and also recollect as when necessary. जब भी ज़रूरत होगी उस टाइम पे हमें क्या कर सकते, उसको याद कर सकते, उसे ही मेमोरी बोला जाता है. So what is the next? The memory is the sum total of what we remember and gives us the capability to learn and adapt from previous experiences as well as to build relationships. So it is the memory. Memory is the sum total what we remember and gives us the capacity. So memory वही है, टोटल सम टोटल वही है जो हम लोगों ने पहले एक्सपीरियंस लिया या फिर नॉलेज एक्वायर किया, उसको कितना याद है, यहाँ कितना याद है वो, और वही हमें क्या देता है, कैपेबिलिटी टू लर्न एंड अडाप्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 2 दिन पहले हम लोगों ने क्या खाया था वो हमें इजीली याद नहीं रहता क्योंकि हम लोग रेगुलरली वो काम करते हैं. बट अगर कोई इंसिडेंट हो, जैसे कि हो सकता है चाइल्डहुड मेमोरी हो या फिर कुछ अचीवमेंट हो, जैसे कि चाइल्डहुड में हो सकता है फर्स्ट किसी चीज़ में फर्स्ट प्राइज़ फर्स्ट टाइम लाए, उस चीज़ के बारे में वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है. और वो हम लोग अगर एक बार थोड़ा सा सोचेंगे तो वो सब हमारे दिमाग में आ जाता है. वो उसी को क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं इधर. एंड वो क्या करता है, एक रिलेशनशिप बना देता है. जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट में रिलेशनशिप बनाया, जैसे पास्ट की चीज़ मुझे याद आया और मैं उस पास्ट में ही खो गई, उसे मेमोरी बोलते हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. And then we discuss in this question, if you see this, then what do you mean by memory. हम लोगों ने मैंने ये डिस्कस किया, डिफाइन मेमोरी. सो इन दिस what is memory, both are discussed in this define. Whenever this kind of define memory, that kind of question will ask, you remember that first you need to write the meaning of memory, then you give 1 or 2 definition of memory. because क्या होता है, मीनिंग में कभी कभी भूल हो सकती है, लेकिन अगर डेफिनेशन एक बार याद कर लिया तो क्या होगा, उसमें अगर 2 मार्क्स हुआ क्वेश्चन में, तो अगर एक डेफिनेशन लिखा तो उसमें एक मार्क ही मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन अगर अच्छे से लिखा तो. So let's discuss the definitions. So next one is definition of memory. So according to the Woodworth, memory consists in remembering what has previously been learned. So memory क्या है, consist in remembering what has previously learned. So हम लोगों ने क्या previously पहले क्या learn किया, क्या सीखा, जो what we acquire knowledge from outer world, and what experiences we get from the work and the things or the incident, that kind of things, and how we remember, and what काइंड ऑफ और कितना पोर्शन हम लोग याद रख सकते या फिर याद अभी कर सकते, उसको मेमोरी बोलते अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ. So next definition is according to McDougall. In narrowest sense, memory or remembering implies imagining of events as experience in the past. So according to the McDougall, it is the in narrowest sense memory or remembering. So in this, McDougall said that memory or remembering means memory is also called the remembering or remembering capacity.
इमेजिनिंग ऑफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंस। सो कोई इवेंट के बारे में हो गया, उसके बारे में हम लोग सोच रहे, उसमें से क्या एक्सपीरियंस मिला पास्ट में, उस चीज़ को समझ के हम लोग अभी प्रेजेंट में जो काम करते हैं उसको मेमोरी बोला जाता है। सो दिस इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ memory. So from the definition we may say that memory is revival of past experience and it involves certain processes. So डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को समझते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेमोरी क्या है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसको रिकॉल करना, फिर से याद करना, और इट इन्वॉल्व सर्टेन प्रोसेसेस। सो जो मेमोरी है वो एक प्रोसेस है या फिर वो इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लोगों ने क्या वी लर्न समथिंग, मीन्स वी लर्निंग समथिंग, हम लोगों ने कुछ सीखा, एंड देन वी स्टोर्ड इट इन आवर माइंड, हम लोगों ने वो जो सीखा उसको स्टोर करके रखा। मीन्स फर्स्ट में क्या आएगा, लर्न, learn, then store, हम लोगों ने क्या किया, उसको मेमोरी का प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, लर्न, जो चीज़ है एक्सपीरियंस है उसको लर्न किया, लर्न करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको स्टोर किया, स्टोर किया, स्टोर करने के बाद क्या होगा, हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम के अनुसार हम लोग उसको रिकॉल करेंगे, मीन्स रिमेम्बरिंग, रिकॉल किया। अभी क्या क्या, लर्न, पहले हम लोगों ने उस चीज़ को, किसी चीज़ को लर्न किया, उसके बाद स्टोर किया माइंड में, उसके बाद उसको रिकॉल किया, मीन्स उसको फिर से याद किया, फिर होगा क्या, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, उसके बाद क्या क्या, रिकॉग्निशन, मीन्स रिकॉग्निशन में क्या होता है, इट इज़ द एग्जैक्ट रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, हम लोगों ने उसको एग्जैक्ट रिकॉल किया, बाय रिकॉग्निशन किया। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। सो आई होप यू ऑल आर understand those topics. If I have any problem then you tell me those. So this is the meaning of memory today we discuss. So thank you everyone, and अगर कोई फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी जो भी है शेयर कर देना, जो बाकी सबको भी ये वीडियो मिले। थैंक यू।